एमजीआर होलकर क्रिकेट स्टेडियम जहां पे हम हैं, वहां आज ये दूसरा मुकाबला जो होगा वो बड़ौदा और तमिलनाडु के बीच होगा। Krunal, go for it. Tails. Tails is the call. Heads it is. Just needs the mic. Yeah, what are you going to do? We'll bowl first. And these two openers from Tamil Nadu, they also come out all guns blazing. Very strong unit. Ball one it is with a hint of turn with the new ball. Excellent running. That'll be four. This is a tough gig, but he's in for a little test over here. Using the pace of the ball, fine leg fielding inside the circle, easy pickings. How good is this shot? This is over wide-ish mid-on, length ball, sort of just giving it the full face of the bat. Beautiful shot, stand and deliver. Beautiful. Again, risk-free. No fielder over there. Yeah! धीमी गेंद हवा में पड़ने के बाद घूमती है और आपको विकेट मिलती है। बेहतरीन शॉट, कोई मौका नहीं, 4 रन। और जबरदस्त शॉट, कोई मौका नहीं, 6 रन। बेहतरीन शॉट, कदमों का इस्तेमाल सिर्फ टाइम पर कर दिया, कोई मौका नहीं, एक और चौका। Shot of length and pulled away for a 4. First ball of Hardik Pandya has been pulled away for 4 by Jagdishan. That's a very good shot. We just talked about it. If you bowl fuller, you're dispatched for a 4, and that's what happened. Bhupati dispatches one for 4, which is bowled up by Hardik Pandya. Tried a full toss, low full toss there, but dispatched away for a 4. Racking hit. Gosh! 15 yards left of the mid-wicket fielder. Went like a trace of bullet. विकेट बहुत बढ़िया है इस बार। 50 रन भी पूरे हुए 6 रन के साथ। यह जगदीशन का स्ट्रेंथ है। आप छोटी गेंदबाजी नहीं कर सकते। इस विकेट के ऊपर आप ऐसे गेंदबाज जितना छोटा करेंगे उतनी पिटाई आपकी होगी। कमाल का शॉट खेला जगदीशन ने। International cricket, yes, maybe. Not in domestic cricket. They've taken it to another level altogether. One that got away. कदमों का इस्तेमाल किया, हवा में फील्डर वहां मौजूद है लेकिन एक दर्शक बनकर रह जाएगा। This time he will haul out. 28 बनाए भूपति ने, 114 पर 2 तमिलनाडु। Look at that. Always on the stumps. Always on the stumps. He's in the middle of a really good spell. 57 रन बनाए जगदीशन ने, 120 पर 3 तमिलनाडु। अतीत सेठ पहली गेंद और बाहर, मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। That's another one, up in the air, up in the air. It's a cruel game. Although they did not middle it. Oh, look at that, look at that. A massive, massive hit from Vijay Shankar. ओह, थर्ड मैन पर कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं, गति का इस्तेमाल कीजिए। थर्ड मैन में कोई फील्डर मौजूद नहीं और रन बटोर लीजिए। ओह, शाहरुख खान की पावर। और इस शॉट के साथ 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हुई। And that's again talked away for a 6. 2 consecutive sixes of Hardik Pandya, Vijay Shankar. इस तरह से बड़ा शॉट खेलते हैं। ढूंढ लिया आपने फील्डर को, मिल गई है विकेट, टूट गई है साझेदारी और एक बार फिर वही लेंथ जिसके बारे में बात कर रहे थे,
बिल्कुल जड़ में लेके चलते हैं आप तो बल्ले के निचले भाग पे आके गेंद लगती है। And it's been dispatched. Fantastic stuff. And again a 6. ये लीजिए, पिछले ओवर में हम यही बातें कर रहे थे यॉर्कर के बारे में। ये लीजिए, ऋषभ पंत की याद आ गई। बड़ी बड़ी कमाल की ये शॉट लगती है जब इतनी खूबसूरती से आप खेलते हैं। बोल्डन, विकेट मिली है यहां पे आखिरी गेंद पे। एक और बहुत बढ़िया ओवर ये मेरी वाला का। 10 रन दिए आखिरी ओवर में, लेकिन 2 विकेटें भी हासिल की हैं। 200 के स्ट्राइक रेट से 5 गेंदों पे 10 रन बनाए हैं ईश्वरन ने। 10 रन बना के आउट हुए और 221 रन 6 विकेट के नुकसान पे है तमिलनाडु अपने 20 ओवर के बाद। और अगर लक्ष्य की बात करें तो 222 रन 2-2-2 ये लक्ष्य है बड़ौदा के लिए 11.1 की औसत से। There's a slip in place because of their outswinger. Here Kookaburra ball in hand. Is it going to talk? Yep, a hint of outswing. शॉर्ट लेंथ बॉल पुल कर दिया और पहला ही शॉट 6 रन। एक बार फिर वही गलती, शॉर्ट लेंथ बॉल पुल कर दिया और लगभग वही नतीजा। That'll go all the way. Not a bad ball, dug out, went for the Yorker. But that's how the cookie crumbles at times, doesn't it? हवा में और इसी के साथ पहले विकेट का पतन। Ritesh Patel has gone for 18, but will lose their first for 20. That will be 4. एक बार फिर गति परिवर्तन, लेकिन आप धीमी गति से गेंदबाजी करें, तेज गति से गेंदबाजी करें, नतीजा वही है 4 रन। बैक टू बैक 2 चौके। That is a very good shot. इस तरह के शॉट्स आपको खेलते रहने पड़े होंगे। एक और बाउंड्री हासिल करते हुए यहां। And once again over. Long on for a 6. This must be one of the most expensive overs of bowled by Tamil Nadu in this game. And that's a great shot, very well picked up. And that's the mystery behind the mystery spinner. He is gone, Shivalik Sharma. शिवालिक शर्मा 14 रन बना के आउट हुए 57 पे 2। कैच इट तो कोई नहीं कर पाएगा, स्टॉप इट ही कर लीजिए ना, गेंद रुकेगी नहीं ना। बहुत ऊपर चला गया है ये गेंद, 2 फील्डर हैं और पकड़ लिया। अच्छा कैच पकड़ा है यहां मोहम्मद भाई, वाह, मजा आ गया। द्वारा और अब मोहम्मद बीच में होगा, नहीं रुकेगा ये। That's nicely hit. It is out of the park. एक और लेफ्ट फील्डर मौजूद, साई किशोर ने ये कैच छोड़ दिया। That's another one. Another boundary. 2 sixes and a 4. कुछ और अच्छे ओवर्स चाहिए इस तरह। एक और बाउंड्री लीजिए। That's nicely played. That's up in the air. And Chetan just told you, don't bowl short on this pitch. The moment you bowl short, batsman rocks back and smashes you over mid wicket for 4. That is exactly what Pandya did. Right on the dot, right on the money. But now this one has been hoiked. And now I think it's straight in the hands. Good catch by Shahrukh. Good cricket by Sai Kishore. Good, very well bowled. But he does this
in the second ball and gets treated for a long shot over bowler's back for a 6. ये देखिए जरा नजाकत. That's a fantastic shot. ना पिछला पांव ऐसा लगा तो नहीं उठा था. चलिए एक बार चल के देखते हैं कि पश्चिम पाठक जो कि टीवी अंपायर हैं इस मैच के, उनको क्या नजर आता है. रन आउट कैमरा से एक अलग दृश्य नजर आते हैं. खतरे की घंटी, खतरे की घंटी. Pandya goes for 42 of 20 balls. जो बात कर रहे थे आपने, ओहो छूट गया. ओहो ये क्या कर दिया. And that's the wicket gone. Solanki tried to pull it and he was giving leg before. Vishnu Solanki goes for 3, leg before Chakravarti Baroda 152 for 6. ये लीजिए आते संगी दादा, देखिए शॉट जो खेल दिया इन्होंने. एक और बिल्कुल सीधा बैक टू बैक 2-6 लगाते हुए हार्दिक पांड्या. Oh, it's getting bigger and bigger and bigger. ये लीजिए स्टेडियम से बाहर. Well, before रन जाएंगे यहां पर, रोक नहीं पाएंगे. 50 रन पूरे होते हैं हार्दिक पांड्या के. 20 गेंदों का सामना किया, अपना शतक पूरा किया हार्दिक पांड्या ने इस बाउंड्री के साथ. 6 men on the offside, little edge. Had to get a little tickle onto that one. ऊपर मत डालिए, ऊपर डालेंगे तो इतना ही दूर जाएगा स्टैंड्स में. That's another flat 6. Long off is only. ये एक चांस है, यहां फील्डर्स को दूसरा रन नहीं देना. दूसरे के लिए भागे, बहुत नजदीकी मामला. भागते जाइए, हार्दिक अब आउट हो चुके हैं. अब भागते जाइए, इस मैच में अभी भी जान है. कमाल का थ्रो आया डीप मिड विकेट से, डायरेक्ट हिट. वेल प्लेड हार्दिक. 69 रन बनाए 30 गेंदों पर, 213 पर 7. आखिरी डिलीवरी मोहम्मद. Is there a super over? Is there a super over? There is a super over. They've won. There's no super over. It's beyond a super over. What a game of cricket. A big dive. 3 runs might have got the super over. What a game of cricket. Second highest run chase ever in SMAT. Outstanding, absolute blockbuster. 2 teams undefeated. Now there's only one, and that is Baroda. In the last ball of the game, winning by 3 wickets, getting 12 points and going to the top of. प्रेत लोक, कहानी दहशत की. रात का वक्त था. रमेश अपने ऑफिस से घर की ओर जा रहा था. सुनसान रास्ता और सन्नाटे की आवाज. लेकिन रमेश बेखौफ था, क्योंकि वो रोज इसी रास्ते से अपने घर जाता था. लेकिन वो इस बात से अनजान था कि उसके साथ आज एक ऐसी अनहोनी होने वाली है जो शायद उसकी जिंदगी को मौत के हवाले कर दे. रमेश उस सुनसान रास्ते पर गुनगुनाता अपनी बाइक से चला जा रहा था. तभी उसकी नजर रास्ते किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ती है, जिसका रंग सांवला और कद 5 फीट 2 इंच. वो उससे मदद मांग रही है. रमेश का ध्यान अभी उसी पर था कि उसकी बाइक अचानक खुद ब खुद रुक जाती है, जैसे किसी ने ब्रेक्स लगा दिए हों. वो हैरत में अपनी बाइक के रुकने के बारे में सोचने लगता है. तभी मदद मांगती हुई लड़की बोलती है, मेरा नाम राधिका है, क्या तुम मुझे
मेरे घर तक छोड़ सकते हो? उसकी आवाज से एक पल के लिए रमेश थोड़ा डर सा जाता है, क्योंकि उसके नाम बताने का तरीका आम इंसान जैसा नहीं था। इधर लड़की रमेश के मन को भाने लगती है और वो डर भूलकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो बिना कुछ सोचे ही उसे अपनी बाइक पर बैठाकर चल देता है। बाइक सुनसान रास्ते पर चली जा रही थी और कुछ दूर ही पहुंचती है कि वो लड़की बाइक से अचानक गायब हो जाती है। रमेश को जैसे महसूस होता है कि लड़की उसकी बाइक पर नहीं है। वो पीछे देखता है तो वो सड़क पर पड़ी थी, उसके सिर से खून निकल रहा था। वो बाइक रोककर लड़की के पास पहुंचता है और डॉक्टर के पास चलने को कहता है, लेकिन वो लड़की मना कर देती है और अपने घर चलने के लिए कहती है। अब रमेश मना नहीं कर पाता। वो उसे बाइक पर बिठाकर उसके बताए रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। रमेश की बाइक अब राधिका के घर के सामने थी। उसके घर पर कोई नहीं था और रमेश को उसका घर मानो भूत बंगला लग रहा था। रमेश डरता डरता उसके घर के दरवाजे पर पहुंचा और राधिका को छोड़कर चलने की बात कहता है, क्योंकि अब धीरे धीरे रात बढ़ रही थी। रात का अंधेरा और खंडहर जैसे घर की हालत अब रमेश के माथे पर डर को साफ जाहिर कर रही थी। तभी एक डरावनी सी आवाज आती है, आज रात तुम्हें मेरे साथ सोना होगा। ये सुनकर अचानक रमेश और ज्यादा डर जाता है और सोचने लगता है, यह आवाज तो राधिका की है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसने बाइक रोकने पर अपना नाम बताया था। रमेश उस घर से बाहर भागता है और अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन घबराहट में उसके हाथ से चाबी गिर जाती है और जब वो चाबी उठाता है तब उसकी बाइक के पास पड़ी एक लाश की उंगली भी उसके हाथ में आ जाती है। वो नजर उठाता है तो उसके चारों तरफ मर्दों की लाशें ही लाशें दिखाई दे रही थी। ये खौफनाक मंजर देखकर वो घबरा जाता है। अब वो भागने की कोशिश कर ही रहा था कि उसके सामने राधिका खड़ी दिखाई देती है। वो अपनी डरावनी आवाज में पूछती है, तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? ये सब भी तुम्हारी तरह डर कर भागना चाहते थे, लेकिन यहाँ से कोई नहीं भाग सकता। अब तुम्हें वही करना होगा जो मैं चाहती हूँ। अगर तुमने नहीं किया तो तुम भी बहुत जल्दी मारे जाओगे, और तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम वही करो जो मैं चाहती हूँ। इस पर रमेश डरता हुआ अपनी गर्दन हिलाकर हाँ कहता है। ये सुनकर राधिका बहुत खुश हो जाती है। वो रमेश को अपने कमरे में ले जाती है। कमरे की सजावट देखकर रमेश की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो डरते डरते राधिका से पूछता है, तुम कौन हो? ये सब क्या है? राधिका बोलती है, तुम्हें बस मेरे साथ सोना होगा और तुम अपने घर जिंदा जा सकते हो। जो मेरे साथ सोने से इनकार कर देता है उन सब का हाल तुम देख चुके हो। अब रमेश में कुछ हिम्मत आ जाती है और वो बोलता है, मैं आपके साथ सो जाऊंगा, लेकिन पहले ये बताओ आप हो कौन और ये सब क्यों कर रही हो? राधिका बोलती है, ये बस मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले जो मैं बोल रही हूँ तुम बस वो करो। अब रमेश डरता हुआ जैसा राधिका बोलती है वैसा करना शुरू कर देता है। रमेश ये उसके साथ पूरी रात अलग ही दुनिया में खोया रहता है, लेकिन फिर भी डरते डरते वो सुबह का इंतजार करता है। जब सुबह होती है तो उसके पास ना राधिका थी और ना ही वो सुंदर सा घर। अब वहां सिर्फ एक बियाबां जंगल था। रात जो बहुत सजा हुआ घर था अब वे खंडहर में तब्दील हो चुका था। अब रमेश वहां से उठकर अपने ऑफिस पहुंच जाता है। डरा सहमा सा वो काम कर रहा होता है कि उसके कानों में एक आवाज आती है, आज रात भी तुम्हें मेरे साथ सोना होगा। वो तुरंत उस आवाज को पहचान जाता है। ये आवाज तो उसी राधिका की थी। वो डर की वजह से पसीना पसीना हो जाता है
वो अपना काम कर ही रहा था कि तभी एक आवाज़ फिर उसके कानों में सुनाई देती है। वो आवाज़ उसकी कलीग की थी जो बोल रही थी, रमेश तुम आज घर नहीं जाओगे क्या? 7 बज चुके हैं। रमेश घड़ी की ओर देखकर घबरा जाता है, लेकिन वो हिम्मत करके चल देता है क्योंकि उसको एक डर था, लेकिन एक उत्सुकता भी उस लड़के के बारे में जानने की। वो कौन है और ऐसा उसके साथ क्यों कर रही है। रमेश रोज की तरह अब फिर उसी सुनसान रास्ते से जा रहा था, लेकिन आज वो खामोश था। कोई गाना नहीं सुनने आ रहा था और उसके दिल में डर था। अभी बाइक उस जगह नहीं पहुंची थी जहां कल वो लड़की मिली थी, लेकिन फिर भी रमेश का ध्यान उसी तरफ था। लेकिन अचानक उसको महसूस होता है कि उसकी बाइक के पीछे कोई बैठा है और उसके कंधे पर किसी लड़की का हाथ रखा है। ये कोई और नहीं, राधिका थी। राधिका उससे प्यारी प्यारी बातें करती है और वो सिर्फ डरा सहमा सा उसकी बातों में सिर्फ सिर हिलाकर हाँ में जवाब दे रहा था। अचानक बाइक खुद ब खुद रुक जाती है। वो देखता है कि राधिका का खंडहर जैसा घर आ चुका है। रमेश ये देखकर हैरान था कि घर फिर कल ही की तरह सजा हुआ है। वो कुछ पूछ पाता इतने में राधिका उसको उसी कमरे में लेकर चली जाती है जिस कमरे में वो पूरी रात उसके साथ एक अलग दुनिया में था। अब राधिका का बर्ताव बिल्कुल बदल जाता है। वो रमेश के सामने फूट फूट कर रोने लगती है। रमेश उसके रोने से हैरान था। वो उसके हाथ को थाम कर पूछता है, राधिका बताओ आखिर बात क्या है और तुम हो कौन? फिर शुरू होती है राधिका की जिंदगी की वो दर्दनाक कहानी। राधिका बताती है कि मेरा असली नाम कविता है। मैं पास के गांव राजपुर की रहने वाली हूँ। मैं भी एक हंसती खेलती लड़की हुआ करती थी। मेरे पिता मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने मुझे शहर पढ़ने के लिए भेज दिया। करीब 10 साल पहले दिवाली के ठीक 4 दिन पहले पापा ने मुझे फ़ोन करके गांव आने को कहा ताकि त्योहार को सभी लोग साथ मिलकर मना सकें। मैं अगले दिन अपने कॉलेज को ख़त्म करके बस से गांव चल दी। रात हो चुकी थी। बस में खराबी आ गई। बस वाले ने सभी सवारियों को उतार दिया और किसी दूसरे वाहन से अपनी अपनी मंजिल को जाने की सलाह दी। मैं भी गांव जाने के लिए किसी वाहन का इंतजार करने लगी कि तभी गांव का एक लड़का मोहित बाइक से गुजरता है। वो मुझे देखकर रुक जाता है और कहता है कि वो उसे गांव छोड़ देगा। वो मोहित को जानती थी, इसलिए उसकी बाइक में बैठकर गांव की तरफ चल देती है। लेकिन मोहित गांव न जाकर बाइक को दूसरे रास्ते पर मोड़ देता है। जब वो इसका कारण पूछती है तो वो बोलता है कि उसके चाचा पास ही एक घर में हैं, उनसे मिलकर निकल लेंगे। मोहित का भरोसा करके मैं उसके साथ उस घर में चली जाती हूँ। मोहित की नीयत खराब थी और वो वहाँ ले जाकर मेरा बलात्कार करता है। इसके बाद वो मुझे घर में बंद करके आग लगा देता है। मैं चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ, लेकिन वहाँ मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। तब से मेरी आत्मा यहाँ सड़क पर घूमती है और नौजवान लड़कों से लिफ्ट मांगती है। जिस लड़के की नीयत खराब होती है मैं उसे मौत के घाट उतार देती हूँ। आज तुम जिंदा हो उसकी वजह ये है कि तुमने मुझे बुरी नीयत से नहीं देखा। ये कहकर राधिका गायब हो जाती है।